नमस्कार। जैसा आप लोगों को पता है कि हमने 9th क्लास के हिस्ट्री के पहले अध्याय फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस की क्रांति को शुरू किया हुआ है। इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़ा कि फ्रांस की लोकेशन क्या है, रेवोल्यूशन किसे कहते हैं, लुइस 16 के बारे में हमने पढ़ा। हमने स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल, किस तरह से बेस्टाइल के किले को ध्वस्त किया गया, जहां से रेवोल्यूशन की बिगिनिंग होती है, वो हमने पढ़ा। उसके अलावा हमने पढ़ा कि जो सोसाइटी थी फ्रांस की, वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हुई थी। थर्ड एस्टेट, 3 एस्टेट, फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट, थर्ड एस्टेट। कौन कौन से लोग थे जो उन एस्टेट में सम्मिलित थे, किस तरह का टैक्सेशन सिस्टम था, कितने प्रकार के टैक्सेस थे, वो सारे हमने पहली वीडियो में किए हैं। मैं आप लोगों को ऊपर लिंक दे दूंगा, उस लिंक में जाकर के आप एक बार, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो एक बार वीडियो जरूर देखें। वो ज्यादा से ज्यादा 26 मिनट, 27 मिनट या 30 मिनट की वीडियो है। आप उसको देख लें, उसके बाद ही आपको ये वीडियो, ये जो लेक्चर है, ये जो व्याख्यान है, ये आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम एक बार फिर से रुक करते हैं। कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, मेन एस्पेक्ट है, क्योंकि इवैल्यूएशन के दृष्टिकोण से भी, परीक्षा के दृष्टिकोण से भी इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इट इज वेरी मच नेसेसरी टू अंडरस्टैंड व्हाट वर द सर्कमस्टेंसेस created in France which led to the revolution. What were the condition of the people? That's why they raised the voice against the existing government. They were ready to sacrifice their life even. They wanted to uproot the existing monarchy system, and there were so many reasons because of which this upsurge French Revolution took place, and the entire political system, entire administration system of France was changed. And when the political and administration system was changed in France, and slowly the impact was seen in entire Europe and in entire world. We are aware about the 3 ideals we have received from the French Revolution, that is liberty, equality and fraternity. These 3 ideals we are receiving from this French Revolution. So this is the most important part of this chapter, causes of French Revolution. Under this, we are going to throw the light upon these 4 points. These were the main focus reasons, causes of the French Revolution. Subsistence crisis, how these subsistence crises created, what were the reason behind it, we will discuss in detail. Middle class, growing of middle class, how they raised the voice against the unjust system. Philosophers, what are the role of philosophers, what were the role of philosopher? ये क्वेश्चन एक अलग से भी आता है कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ philosophers, तो वी विल सी अपॉन इट. अनजस्ट सिस्टम ऑफ टैक्सेशन, एज वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द सिस्टम ऑफ टैक्सेशन, ओनली द third estate people were forced to pay the taxes. This was a kind of exploitation which were faced by the third estate people, which was enforced by the first estate, that is clergy, and the second estate, nobility, upon these people. So these 2 estates, clergy and noble, they were leading a luxurious life, and the life of the third estate people miserable. They were facing crisis. So the very first reason we are going to discuss the subsistence crisis. Subsistence crisis is a condition, एक ऐसी अवस्था है जहां पर देश के लोग, जो सिटीजन हैं, नागरिक हैं, वो अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाते. बेसिक रिक्वायरमेंट होती है फूड, शेल्टर, क्लोथिंग. द सिचुएशन क्रिएटेड इन द फ्रांस दैट मोस्ट ऑफ द पीपल, especially who belongs to the third estate people, they were not in position to fulfill their basic needs. उनकी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो रही थी. उसके पीछे क्या कारण थे, या सबसिस्टेंस क्राइसिस में हम लोग ये 6 रीजन देखने जा रहे हैं. सबसिस्टेंस क्राइसिस, द मेन रीजन ऑफ सबसिस्टेंस क्राइसिस वाज द इंक्रीज इन पॉपुलेशन बिटवीन 1715 टू 1789. इन दशकों के बीच में फ्रांस की जो जनसंख्या है वो 23 मिलियन से 28 मिलियन हो गई. As you are aware, as the population increased, the demand increased. Demand in every sector increased. Same happened in country. But as we have discussed earlier, the people of every country engaged in primary activities, means they were dependent upon the agriculture. But crop failure took place in the
decade of 80s. Hailstorm means climate was not favorable for agriculture. Crop failure took place, and as the crop failure took place, population was increasing, demand of food grains was increasing. The situation was very, you can say, problematic. See, due to the drought and hailstorm, crop failure took place, and डिमांड ऑफ फूड ग्रेन इंक्रीज बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन पॉपुलेशन. जनसंख्या बढ़ी, फूड ग्रेन्स की डिमांड बढ़ी, और डिमांड बढ़ती है जब जब तब तब प्राइजेस इंक्रीज होते हैं, और प्राइजेस उस लेवल तक पहुंच गए कि जो उनकी जो सैलरी थी वो भी उनको शॉर्ट पड़ने लगी. वेजेस फॉलन शॉर्ट. उनकी जो सैलरी थी वो इतनी नहीं थी कि वो उन सारी चीजों को, उनकी बेसिक नीड्स को पूरा कर पाने में सफल हो पाती. इस वजह से बड़ा क्राइसिस था, लोगों में त्राही त्राही मची हुई थी. लोग खाने की डिमांड कर रहे थे, जो ब्रेड है, आटा है, खाना है, वो लोगों को नहीं मिल रहा था. उसके अलावा हम देखेंगे कि जो प्रोडक्शन है वो सेम थी या कम हो रही थी. हालांकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं जब पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, प्रोडक्शन सेम है, या यूं कहें कि क्रॉप फेलियर की वजह से डिक्रीज हो रही है, तो ये क्राइसिस वहां पर हुआ, जिसकी वजह से जो रिच और पुअर का जो गैप था वो इंक्रीज होता गया. और जो पुअर लोग थे, जिनका एक्सप्लोटेशन हो रहा था, जिनकी बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं हो रही थी, वो त्राही त्राही कर रहे थे. वो चाह रहे थे कि ऐसा कुछ हो कि उनको कम से कम खाने को तो मिले. तो हम कह सकते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन took place because of the subsistence crisis. In subsistence crisis, population increase we have discussed, and because of the population increase, what kind of conditions created? Demand increased, crop failure took place, wages fallen short, the gap between rich and poor increased. That's why the subsistence crisis is one of the main reason for the French Revolution. Now in second part, we are going to discuss about the growing of middle class. We will see now the second main cause of French Revolution. कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो दूसरा मुख्य कारण था मिडिल क्लास का, एक नई क्लास का सोसाइटी में अमर्ज होना. बहुत सारे लोग जो थर्ड एस्टेट के थे वो धीरे धीरे रिच हो रहे थे, एजुकेट हो रहे थे, रिच हो रहे थे, मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहे थे, ट्रेडिंग कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, तो वो अपने बच्चों को एजुकेट भी कर रहे थे. एजुकेशन की वजह से उनको जॉब भी मिल रही थी. जब एजुकेशन होता है तो लोग लिटरेचर पढ़ते हैं, लोग अपनी बात को लिखने का, सुनने का, प्रसारित करने का प्रयास करते हैं. तो आइडिया स्प्रेड हो रहा था फ्रीडम का और इक्वल लॉज का. जो मिडिल क्लास थे, जो एजुकेटेड लोग थे, जिनमें लॉयर्स आते हैं, टीचर्स आते हैं, इन लोगों ने ये मानना शुरू किया, जो सत्य भी था, कि सबको इक्वल ट्रीट किया जाना चाहिए. एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाना चाहिए जिसमें लॉ ऐसे हों जो सबको बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के इक्वलिटी दें. ये पॉसिबल हो पाया मिडिल क्लास की वजह से. मिडिल क्लास ने अपने वॉइस को रेज करना शुरू किया. दे वर सेइंग दैट दे बिलीव दैट नो प्रिविलेज बाय बर्थ शुड बी गिवन to first estate and second estate people. On what basis it is given? What are the reasons they are privileged by birth? You can say that this middle class started to raise voice against the unjust taxation system, against the privileged by birth, because they are becoming prosperous. I have written the word. They are becoming prosperous. They are getting education and they are getting job. It's mean their basic needs are getting fulfilled. When their basic need getting fulfilled, they started to raise the questions to the administration. They wanted to change the political system of the country. They wanted to just uproot the existing system. They wanted that a constitution should be there for the equality, for the freedom, for the fraternity. That's why, because of this middle class, the people started to raise voice, because they started to spread the idea of equality. They started to spread that there should be no privilege by birth. तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो सेकंड कोज है फ्रेंच रेवोल्यूशन का, उसमें जो मिडिल क्लास का ग्रो हुआ, जो मिडिल क्लास उभर करके फ्रेंच सोसाइटी में सामने आया, एक नया क्लास, जिन्होंने चलते हुए सिस्टम पर सवाल उठाने शुरू किए. तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो सेकंड पार्ट है, ग्रोइंग ऑफ मिडिल क्लास, वाज वन ऑफ द कोज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन. सी, आपसे जब भी सवाल पूछा जाता है तो आप अपनी बात को कहने के बाद उस क्वेश्चन को भी जस्टिफाई करेंगे. कि सारी बात बताने के बाद आप लिखेंगे कि ग्रोइंग ऑफ मिडिल क्लास
was one of the important cause of French Revolution. You have to mention it. So this was the second part. Now we are going to discuss the most important part of this chapter, the role of philosophers. तीसरा जो सबसे मुख्य है, रोल ऑफ फिलोसफर, आप पाएंगे व्हेन यू विल गो थ्रू द चैप्टर, जब आप पुराने क्वेश्चन पेपर्स को देखेंगे तो आप पाएंगे कि रोल ऑफ फिलोसफर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता ही आता है कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था उनमें फिलोसफर्स का, दार्शनिकों का क्या योगदान था, क्योंकि दार्शनिक ही होते हैं जो अपने शब्दों से क्रांति लाने का आमादा रखते हैं। तो फ्रांस की क्रांति में इन फिलोसफर्स का, दार्शनिकों का क्या योगदान था, यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। इस पर बड़ा ध्यान रखें। यहां पर हम 3 फिलोसफर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। नाम रखेंगे जॉन लॉक, रूसो एंड मॉन्टेस्क्यू। रिपीट करता हूं, जॉन लॉक, रूसो, मॉन्टेस्क्यू। और इतिहास इस बात का गवाह है कि दार्शनिकों ने, फिलोसफर्स ने अपनी बात से, अपने शब्दों से, अपने व्यूज से, अपने आइडियाज से, अपनी आइडियोलॉजी, विचारधारा से लोगों के विचारों को बदलने का भरसक प्रयास किया है हमेशा ही। और आपने प्लेटो, अरस्तु के नाम सुने होंगे, या आप हमारे इंडिया में विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, इनके बारे में सुना होगा। सब फिलोसफर्स थे। इन लोगों ने एक नए तरीके से विश्व को देखा और दूसरे लोगों को दिखाया। यहां पर सवाल आता है कि जो फ्रांस की जो क्रांति थी, वहां पर जो फिलोसफर्स थे उन्होंने क्या योगदान दिया, किस तरह से अपने व्यूज को रखा, किस प्रकार से लोगों को अपने विचारों से प्रभावित किया, जिसकी वजह से पूरा देश एकजुट होकर के जो एग्जिस्टिंग मोनार्की सिस्टम था, जो अनजस्ट सिस्टम ऑफ टैक्सेशन था, उसके खिलाफ उठ खड़े हुए। तो उस कड़ी में हम लोग 3 फिलोसफर्स के बारे में बात करते हैं। नाम आपको बार बार रिपीट करेंगे, थोड़ा डिफरेंट है, याद हो जाएगा। जॉन लॉक है, रूसो है, मॉन्टेस्क्यू है। देखिए इन्होंने क्या क्या बुक्स लिखी, क्या क्या व्यूज दिए, और उन बुक्स में, उन व्यूज के आधार पर उन लोगों ने क्या एक्सप्लेनेशन दिया, क्या इंटरप्रिटेशन दिया कि राजा के बीच में और पॉपुलेशन के बीच में क्या संबंध होना चाहिए, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो रूलर्स हैं, उनका क्या दृष्टिकोण होना चाहिए अपनी जनता के लिए, अपने साम्राज्य के लोगों के लिए। तो जॉन लॉक ने एक पुस्तक लिखी थी, 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। इस पुस्तक में उन्होंने कहा, ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन है, जो ये राजा को दैवीय शक्ति के बारे में कहा जाता है कि राजा के जो शब्द हैं वो भगवान के शब्द हैं, जिनका अक्षर अक्षर पालन करना चाहिए, ये डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन के अकॉर्डिंग उनका बिल्कुल उन्होंने नकार दिया। ये कहा कि डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन शुड नॉट एग्जिस्ट, देयर इज नथिंग लाइक दैट डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन। एब्सोल्यूट पावर ऑफ मोनार्की को इन्होंने नकार दिया। उन्होंने कहा कि जो मोनार्की है, जो राजा है, उसको सलाह लेनी चाहिए, सलाह लेकर के कोई निर्णय लेना चाहिए। उसका डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन नहीं है, उसके शब्द भगवान के शब्द नहीं है। अगर वो अपनी जनता का, अपने साम्राज्य का ध्यान नहीं रखता तो उसको भगवान मानने की भूल नहीं करनी चाहिए, और वो जो गलत कर रहा है उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। ऐसा जॉन लॉक ने अपनी पुस्तक में लिखा। उनके आइडियाज को लोगों ने पढ़ा और फ्रांस में मोनार्की के खिलाफ लोगों ने आवाज उठाई। रूसो एक बहुत बड़े फिलोसफर हुए हैं। उन्होंने बुक लिखी थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अकॉर्डिंग टू हिम देयर इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन किंग एंड द किंगडम, द पीपल ऑफ किंगडम। दोनों के बीच में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है। किंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो अपने किंगडम में रह रहे लोगों का, नागरिकों का, जनसंख्या का पूरा ध्यान रखे। ये उसकी नैतिक जिम्मेवारी है। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो इसका मतलब वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में फेल हो रहा है, उसको गद्दी को छोड़ के हट जाना चाहिए तभी। और दूसरी तरफ जनसंख्या जो है, जो नागरिक हैं, जो लोग हैं, उनका यह धर्म बनता है, अगर राजा इन सब बातों का पालन कर रहा है, अपनी जनता का ध्यान रख रहा है, तो उसका आदर करें, उनके निर्देशों का पालन करें। और अगर राजा ऐसा नहीं कर रहा है तो ये जनसंख्या, ये जो नागरिक हैं, जो लोग हैं, उनका भी ये अधिकार है कि वो राजा को हटा पाएं। तो ऐसे रूसों के विचार थे सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। जिन बातों से लोग प्रभावित हुए और उन्होंने रियलाइज किया कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा, रूसो के द्वारा कही गई बातों के अनुसार जो राजा है, जो लुईस 16 है, वो अपने वायदे को नहीं निभा रहा है, अपने देश की जनसंख्या के लिए काम नहीं कर रहा है, उनका एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, तो राजा को राजगद्दी पे बैठने का कोई अधिकार नहीं है। तीसरी पुस्तक मॉन्टेस्क्यू ने लिखी, द स्पिरिट ऑफ लॉज। अकॉर्डिंग टू हिम द पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड between legislative
executive and judiciary. There should be a system in which the distribution of power should be there so that they can work independently, so that they can advise to the administration, advise to the ruler, and the ruler should be bound to follow the advices of that system. And you should be aware about it. आपको जानना जरूरी है कि जब यूएस से आजाद हुआ था, मॉन्टेस्क्यू के जो व्यूज थे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के, वो यूएसए ने यहां से लिए थे स्पिरिट ऑफ लॉज में, कि पावर को लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव में डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए। और यूएसए का जो ये सिस्टम है यहां पर मॉन्टेस्क्यू की बुक से प्रभावित है। यू शुड बी अवेयर। तो इस बुक को पढ़ करके जो लोगों के व्यूज थे वो ये थे कि जो राजा है वो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है, किसी भी मंत्रिमंडल से, किसी भी कैबिनेट से वो सलाह नहीं लेता है, वो अपनी मर्जी से कार्य करता है, जिसकी वजह से आज देश की यह स्थिति है कि हमारी बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो पा रही हैं। अतः राजा को गद्दी को छोड़ देना चाहिए। इस तरह से इन लोगों के कार्यों का, इन लोगों के विचारधाराओं का, शब्दों का लोगों के मस्तिष्क पर, जेहन पर इतना प्रभाव पड़ा कि उन्होंने लुई 16 के खिलाफ आवाज उठाई। 14 जुलाई 1789 को आउटब्रेक हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन का, और एक दिन ऐसा आया जब राजा को गद्दी को छोड़ना पड़ा। और आज फ्रांस एक डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में जाना जाता है। उसमें इन फिलोसफर्स का बहुत बड़ा योगदान है। उसके बाद जो नेक्स्ट है अनजस्ट सिस्टम ऑफ टैक्सेशन। ये जो अनजस्ट सिस्टम ऑफ टैक्सेशन था, मैंने आपको बताया था, 2-3 तरह के मैंने आपको बताए थे। टिथ बताया था, टैक्स जो चर्च लेता है, और उसके बाद टैली बताया था जो स्टेट को जाता है। कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस थे जो गवर्नमेंट को दिए जाते हैं। वो सारे के सारे टैक्सेस जो हैं केवल थर्ड एस्टेट के लोगों द्वारा ही लिए जाते थे। फर्स्ट एस्टेट के क्लर्जी, सेकंड एस्टेट के नोबेल जो लोग थे, उन लोगों को प्रिविलेज था कि वो टैक्स नहीं, बाय बर्थ प्रिविलेज था, वो टैक्स नहीं भरेंगे, और टैक्स केवल और केवल थर्ड एस्टेट के लोगों द्वारा भरा जाएगा। ये जो अनजस्ट सिस्टम ऑफ टैक्सेशन था, और उसको भी समय समय पर अपनी मर्जी से टैक्स को इंक्रीज कर दिया जाता था, लोगों पर एनफोर्स कर दिया जाता था, उनसे जबरदस्ती वसूली की जाती थी, जिसकी वजह से ये आउटब्रेक ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। तो ये एक सिस्टम भी रिस्पॉन्सिबल है टैक्सेशन का, जिसकी वजह से फ्रांस में क्रांति आई। तो देखेंगे मेन 4 कारणों की वजह से फ्रांस में क्रांति आई। सब्सिस्टेंस क्राइसिस की वजह से, जिसकी वजह से खाने की, फूड की, ब्रेड की कमी हो गई। मिडिल क्लास अमर्ज हो रहा था, जिन्होंने सिस्टम को चैलेंज किया। फिलोसफर्स ने अपने व्यूज के द्वारा लोगों के मस्तिष्क पर प्रभाव डाला, उन्होंने आवाज उठाना शुरू किया। और जो अनजस्ट सिस्टम ऑफ टैक्सेशन था, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा तबका फ्रांस की सोसाइटी का डिस्टर्ब था, ये सब कारण मिलकर के बने जिनकी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। तो आपके सामने क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन और आंसर भी साथ साथ में लिखते रहेंगे। इसमें 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। एक्सप्लेन सब्सिस्टेंस क्राइसिस एज अ कॉज ऑफ French Revolution, role of philosophers, और collectively what were the causes of French Revolution। तो इस तरह से आप इसको देखेंगे। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है डिस्कशन का, उसमें आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन, क्रांति का आउटब्रेक कहां पर हुआ, ट्रिगर पॉइंट कौन सा था। देखिए, उसके लिए जरूरी है हमें एक वर्ड है एस्टेट जनरल, इसके बारे में जान लेना चाहिए। एस्टेट जनरल क्या था उस समय? ये एक पॉलिटिकल बॉडी थी जिसमें तीनों एस्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स आते थे, मिलकर के बैठते थे, और उसमें यह डिसीजन लिया जाता था कि टैक्सेशन सिस्टम किस तरह का होगा। तो लास्ट मीटिंग जो थी वो 1614 में हुई थी। ये देखिए कि वहां पर भी थर्ड एस्टेट के लोगों का, हालांकि वो रिप्रेजेंटेटिव थे थर्ड एस्टेट के लोग, मिलकर के डिस्कस किया करते थे, लेकिन इसके बावजूद भी उनको कोई राइट नहीं था, कि उनका कोई से नहीं था, उनकी बात को कोई सुनता नहीं था। देखने का प्रयास करेंगे कि वर्सेल में 5 मई ऑफ 1789 में लुईस 16 ने एक एस्टेट जनरल की, जो पॉलिटिकल बॉडी है जहां पर रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं, उनको कॉल अपॉन किया 5 मई 1789 में।
इन सबको बुलाया गया वर्सेल के पैलेस में, जो पेरिस है, उस विशाल भवन में बुलाया गया। वहां पर फर्स्ट एस्टेट के 300 लोग आए थे, सेकंड एस्टेट के भी 300 लोग आए थे और थर्ड एस्टेट के 600 लोग आए थे, क्योंकि बाकी के लोगों को जो एक भीड़ के रूप में बाहर खड़े थे उनको अंदर नहीं आने दिया गया। तो 600 लोगों को रिप्रेजेंटेटिव के रूप में अंदर आने की अनुमति मिली और उनके पास करीबन 40,000 लेटर भी थे, जो लोगों की ग्रीवेंसेस थी उनको लेकर के वो आए थे। उनको बताना चाहते थे कि लोग इस टैक्सेशन सिस्टम से कितना परेशान है। तो यहां पर सिस्टम क्या था देखिएगा, सिस्टम क्या था, राजा आता है दरबार में, सब बैठे हुए हैं, 300 लोग फर्स्ट एस्टेट के हैं, 300 लोग सेकंड एस्टेट के हैं और थर्ड एस्टेट के 600 लोग हैं। सिस्टम क्या था कि एक एस्टेट का एक वोट माना जाएगा। इनकी एक वोट भले ही कितने आदमी हैं, इनकी एक वोट भले ही कितने आदमी, और भले ही ये हजारों में हैं, देश की जनसंख्या का 80 से 90% है, लेकिन इनका भी कलेक्टिवली एक ही वोट होगा। वोटिंग हुआ, लुइस किंग ने प्रस्ताव रखा कि वो क्राइसिस की वजह से, इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से टैक्स को इंक्रीज करना चाहता है। इन तीनों की वोटिंग हुई, जैसा आपको मालूम है, एक वोट इनका आया, ये टैक्स इंक्रीज करने के पक्ष में थे, एक वोट इनका आया, टैक्स इंक्रीज करने के पक्ष में थे। क्यों थे पक्ष में? क्योंकि इन दोनों एस्टेट के लोगों को बाय बर्थ प्रिविलेज था, उनको प्रिविलेज था कि उन्हें टैक्स देने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए वो एग्री हो गए। और इन लोगों को टैक्स देना पड़ता था, जिस सिस्टम अनजस्ट था, इकोनॉमिक क्राइसिस था, लोगों के पास जॉब नहीं थी और लोगों के पास खाने के पैसे नहीं थे। इन्होंने इनके खिलाफ वोट किया, लेकिन 2 वोट होने की वजह से ये जीत गए और राजा ने अनाउंस कर दिया कि टैक्स को बढ़ाया जाएगा। इन लोगों ने उस मीटिंग का बहिष्कार किया और वो लोग बाहर आ गए। उनकी डिमांड थी कि एक आदमी एक वोट होगा, 1 स्टेट 1 वोट नहीं होगा। इस बात को राजा ने नकार दिया, जिसकी वजह से वो लोग 20 जून को सारे के सारे वर्सेल पैलेस में, जो टेनिस कोर्ट था, वहां पर इकट्ठा हुए और उन्होंने निश्चय किया कि अब वो इस सिस्टम को बदल करके रहेंगे। और उन्होंने एक असेंबली को फॉर्म किया जिसका नाम था नेशनल असेंबली। और इस सभी सिस्टम में आपको जानकर के आश्चर्य होगा, इन लोग देखिए, बिना किसी लीडरशिप के, बिना किसी नेता के इतना बड़ा अपसर्ज होना मुश्किल था। तो उस समय जो लोग वहां पर इकट्ठा थे, उसमें फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के लोग भी थे। देखिए, ये थे मीराब्यू, नोबल क्लास के थे, बहुत बढ़िया राइटर थे, बहुत सारे जर्नल इन्होंने लिखे थे। और ये भी ये जो अनजस्ट सिस्टम टैक्सेशन का था उनके खिलाफ थे और लोगों के साथ इन्होंने इस सिस्टम को बदलने के लिए कंधे से कंधा मिलाया। मीराबू जो एक नोबल थे, अब्बेसी जो एक प्रिस्ट थे, और उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी, व्हाट इज थर्ड एस्टेट, मींस दे वर फीलिंग द पेन ऑफ द पीपल हु वर पेइंग टैक्सेस। अनजस्ट सिस्टम के खिलाफ थे वो। इन लोगों ने लीड किया और नेशनल असेंबली को फॉर्म किया। उसके बाद की क्या कंडीशन है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक बार फिर से यहां देखते हैं, एस्टेट जनरल क्या है? एक पॉलिटिकल बॉडी है रिप्रेजेंटेटिव्स की, जिसको राजा के द्वारा बुलाया जाता है। फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट, थर्ड एस्टेट के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं। लास्ट मीटिंग 1614 में हुई थी। उसके बाद 5 मई 1789 को मीटिंग हुई, जिसमें राजा ने प्रस्ताव रखा कि वो टैक्स को बढ़ाना चाहता है। इन्होंने नकार दिया, इन्होंने हाँ की, लेकिन अंत में ये लोग बाहर आ गए और इन्होंने टेनिस कोर्ट में 20 जून को इकट्ठा होकर के नेशनल असेंबली को फॉर्म किया, जिसमें इनको लीड किया और इनकी हेल्प की एक नोबल ने, एक प्रिस्ट ने। इस तरह से ये एक इवेंट आपके सामने रखा है। क्वेश्चन बनता है, व्हाट यू मीन बाय एस्टेट जनरल, व्हाट वाज द रोल ऑफ इट, हाउ द आउटब्रेक स्टार्टेड, हु आर द पीपल फ्रॉम फर्स्ट एस्टेट एंड सेकंड एस्टेट हु हेल्प them in formation of national assembly। तो ये एक इवेंट है। इसके बाद हम लोग जो पार्ट करने जा रहे हैं मैं आपको बताता हूं। सी, इसके बाद हम लोग जो देखेंगे कि फ्रांस की कंडीशन कैसी थी। जैसे मैंने आपको बताया कि किस तरह से थर्ड एस्टेट के लोगों ने रिवोल्ट कर दिया, 1 एस्टेट 1 वोट के सिस्टम को नकार दिया और नेशनल असेंबली को फॉर्म किया। 1789 की 5 मई, उसके बाद 20 जून 1789 की हमने बात की। उस समय में फ्रांस की कंडीशन क्या थी? उस समय बहुत ही भयंकर सर्दी का दौर था।
भयंकर सर्दी थी और जिसकी वजह से खेती जो है बिल्कुल तबाह हो गई थी। जो ब्रेड के, जो खाने के जो प्राइजेस थे बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए थे, जिसकी वजह से जो वोमेन का क्राउड था, क्योंकि उनके बच्चे भूखे मर रहे थे, उन्होंने राशन की दुकानों को लूटना शुरू कर दिया, अटैक करना शुरू कर दिया। और किंग ने भी ये ऑर्डर कर दिया कि अपने ट्रुप्स को और जाएं, आप इस अपसर्ज को, इस एगिटेशन को आप हटा दें, उसके लिए भले ही आपको शूट करना पड़े। और रूमर ये भी था कि बैंड ऑफ ब्रिगेड होता है बदमाशों का वह समूह जिसको हायर किया जाता है किसी को मारने के लिए, किसी को पनिश करने के लिए। तो ये रूमर्स था कि राजा ने बैंड ऑफ ब्रिगेड लगा दिए हैं और वो कभी भी सिटी के अंदर एंटर कर सकते हैं। लेकिन इतने बड़े लेवल पर जो अपसर्ज हुआ उसकी वजह से लुईस 16 इस बात के लिए फोर्स हुआ कि उसने नेशनल असेंबली को रिकॉग्नाइज किया, और उसको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का अधिकार मिला। नेशनल असेंबली को प्रिविलेज या रिकॉग्निशन देने के बाद कुछ अमेंडमेंट हुए, जिसमें से सबसे मुख्य था कि जो दोनों क्लास हैं, चर्च यानी क्लर्जी और जो नोबल्स हैं, उनको बाय बर्थ किसी भी प्रकार की प्रिविलेज अब से नहीं दी जाएगी। उसके अलावा जो टिथ एक टैक्स था जो चर्च के द्वारा कलेक्ट किया जाता था, उसको एबॉलिश कर दिया गया, बंद कर दिया गया। बहुत बड़ा इवेंट था क्योंकि चर्च एक बहुत पावरफुल इंस्टीट्यूशन था, लेकिन इतने बड़े जनसमूह के सामने राजा ने भी घुटने टेक दिए। और जो लैंड थी चर्च की, क्योंकि 90% जो जनसंख्या थी उसके पास तो केवल 30-40% लैंड थी, जो थर्ड एस्टेट के लोग थे। जो चर्च थे, जो नोबल्स थे, उनके पास 60 से 70% तक लैंड थी। लेकिन इस एक्सेप्टेंस ऑफ नेशनल असेंबली के बाद चर्च की सारी लैंड को कॉन्फिस्केटेड कर दिया गया, सारी लैंड को ले लिया गया और उनके पास कोई लैंड नहीं थी। 2 बिलियन लीवर नेशनल असेंबली के पास या गवर्नमेंट के पास, एडमिनिस्ट्रेशन के पास आए। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एस्टेब्लिश हो गई। 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया। व्हाट वी मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोनार्की एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की? मोनार्की, किंग इज द एब्सोल्यूट पावर, nobody can deny the instruction, the order of the king. King are not required to take the advice of their cabinet or ministers. He is not bound to follow anyone. But in constitutional monarchy, he has to take the advice. Not only take, but he has to pay attention or heed. What are the demands of the people? What are the requirements of the people? It's mean the power of monarch is controlled by the constitution, which was framed by the National Assembly in 1791. And this was the time when France from monarchy कन्वर्टेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का क्या मतलब है कि एक संविधान होगा जो राजा की शक्तियों पर नियंत्रण करेगा, राजा को कोई निर्णय लेने से पहले सलाह लेनी पड़ेगी। इस तरह से ये जो इवेंट आपके सामने मैंने रखे कि किस तरह से सर्दी की वजह से, बेड हार्वेस्ट की वजह से लोगों के पास खाने की कमी हो गई और लोगों ने अपसर्ज कर दिया। लोगों के पास रूमर्स आ गया था, रूमर्स की वजह से उन्होंने गवर्नमेंट बिल्डिंग पर अटैक करना शुरू कर दिया। और फाइनली जो लुईस 16 था, ही वाज एनफोर्स्ड टू एक्सेप्ट द रिकॉग्निशन ऑफ नेशनल असेंबली, and National Assembly started to work for making the constitution, and according to the constitution no privilege will be given to anybody. Land of the church was confiscated and it was abolished. It's mean unjust taxation system was dismissed from the country, and the France become the constitutional monarchy and a new constitution framed by the National Assembly. तो ये आपका चैप्टर का काफी हिस्सा है। ये वीडियो लंबी होने जा रही थी, इसको मैं अभी यहीं पर रोकूंगा, बाकी की बात हम लोग फिर से करेंगे। देखिए आपको अब करना क्या है, एक तो जो मैं बातें बता रहा हूं उन बातों को आपको नोट करते जाना है। लिटरेचर यानी बुक को जरूर पढ़ना है। आप एक बार मेरे कहने से बुक को पढ़ करके देखें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आपको एक भी शब्द समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि वैसे ऐसा होगा नहीं, क्योंकि इस तरह से सीक्वेंस मैंने बनाई है, आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको और कुछ चीजें डिटेल में बताई जाएंगी फ्रेंच रेवोल्यूशन की, कि 1791 के बाद, नेशनल असेंबली के बाद क्या क्या फ्रांस में हुआ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है
कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं वो तुरंत आपके पास आए और आप उसको देख करके अगर आप उसमें से नॉलेज को ले सके। अगर आपको लगता है कि आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इनको शेयर करना चाहिए। आप इसको लाइक करिए। शेयर और सब्सक्रिप्शन और लाइक का मैं आपको क्यों बता रहा हूं, मैं आपको बता दूं, इसका रीजन बता रहा हूं। काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जैसे सब्सक्रिप्शन बढ़ता है, लाइक बढ़ते हैं, शेयर बढ़ता है, तो हमें लगता है कि हमारी बात को सुना जा रहा है। हम दोगुने उत्साह के साथ और प्रयास करके और मैटर को इकट्ठा करके आपके सामने रिप्रेजेंट करने का प्रयास करते हैं। तो हमें मोटिवेट करने के लिए, इंस्पायर्ड करने के लिए, अगर आपको ठीक लगता है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अभी की अभी करें। ठीक है। फ्रेंच रेवोल्यूशन के अगले पार्ट के लिए, अगले व्याख्यान में, अगले वीडियो के लिए इंतजार करें। मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।